Hello everyone. So you know that we are doing Indian polity, previous year questions from state PSCs. So today we are seeing the questions of government system. Okay, so already a lot of question we have done in the past lectures. Today we'll see some more question from this topic. Okay, so let's start today's lecture. Okay, so this is the 31st question for this topic. So anyway, we'll see which one of the following determines that Indian कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल. ओके, सो मतलब क्या चीज जो है वो डिटरमाइन करता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ए फेडरल. सो रिटन एंड नॉन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री जुडिशरी, रेजिड्यूरी पावर और वेस्टेड इन सेंटर स्लैश यूनियन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. ओके, देखिए अगर आप थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाओगे तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, देखिए जो फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो हमारा जो पावर होता है, ओके, इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, स्टेट के पास भी कुछ पावर होगा, सेंटर के पास भी पावर होगा. सो द पावर हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स. ओके, सो द आंसर विल बी डी. देखिए आईएएस का क्वेश्चन है. सो आईएएस में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है, बट इज नॉट लाइक वेरी tough question as they're going to ask. They will ask the fact base. I mean, I will not say the fact base. With the given fact, they will give a question like you have to muggle the things, and whatever they can extract from that actually they are asking. So yeah, the democratic government are classified into two categories: unitary and federal. In an unitary constitution, all the powers are concentrated to the central authority. Okay, और जो हमारा यूनिटरी जो गवर्नमेंट होता है उसमें ना पूरा का पूरा सेंटर के पास अथॉरिटी होती है. बट इन द फेडरल इज नॉट लाइक दैट. द स्टेट आर subordinated to such central authority. In a federal constitution, there is a distribution of power among the center and state. सबॉर्डिनेट ऑफ द सेंटर. जो हमारे स्टेट होते हैं वो सबॉर्डिनेट नहीं होते. जैसे मान लो कि यूपी है, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं. ऐसा नहीं कि जो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं वैसा ही वो करेंगे. बाय डिफॉल्ट लाइक यूपी में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंटर में भी है, तो वो अलग बात है. बट स्टिल द यूपी चीफ मिनिस्टर हैज देयर ओन पावर. From where it is actually that power comes from constitution, and it is because of federal structure of the constitution. Okay, in Indian constitution there is a provision for the distribution of powers between union and state in the 7th schedule. So it is called the federal constitution. देखिए मैं आपको काफी ढेर सारे एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि काफी ढेर सारे क्वेश्चंस करने. पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे मैं करा रहा हूँ. सो यू विल गेट मोर देन 20,000 मे बी 25,000, more than 25,000 question I'm going to do that. Okay, so talking about the theory part, anyway I will do the theory as well. Okay, so I mean theory means whatever the standard books we are following for SPSCs or UPSC, that will be helpful for both. So we will deal all those things in a very comprehensive manner. Already I have started the polity by Lakshmi Khan. You can start watching that, but as time progresses you'll get lectures of all the important books which is important for the civil services preparation. Okay, yeah, but जहां पे जरूरत होगा I will tell you a little bit about. Okay, this is the thing. Anyway, we'll see the next question. Indian constitution is rigid, flexible, neither rigid not flexible, partly rigid and partly flexible. So you know that it is our constitution is not completely rigid and not completely flexible. जैसे कि आप देखो कि if you see the amendment procedure,
we have what do you say like ऑर्डिनरी बिल होती है ना, और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है। तो ऑर्डिनरी बिल में 50% से +1% वोट हमें चाहिए होती है पास कराने के लिए, बट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। ठीक है, तो अगर मान लो कि किसी गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू द मॉडिफिकेशन ऑन द constitution. So that's why like it is neither a rigid neither a flexible, दोनों का मिक्सचर है। Okay, so that's why the answer is D. So the Indian constitution is considered as a combination of flexibility and rigidity, as it is partially rigid and partially flexible. Some of its provision can be amended by simple majority, जैसा कि मैं आपको बताया थोड़ी देर पहले, or some of the provision need 2/3 majority under Article 368 for amendments. Even after the special 2/3 majority, some of them need ratification at least of 50% of state legislature. अब देखिए कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं, जैसे कि जीएसटी वाली जो चीज़ थी, अगर पार्लियामेंट में कोई ऐसी चीज़ प्रेजेंट हो रही है जिससे जो हमारे स्टेट्स हैं उनकी पावर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या उनका इंटरेस्ट चेंज होने वाला है, सो they has to actually get a ratification of at least 50% of the state legislature. Okay, तो जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उसमें से अगर 50% स्टेट लेजिस्लेचर बोलता है कि हाँ ठीक है आप कर सकते हो, सो इट कैन बी डन। जैसे कि जीएसटी के केस में ऐसा हुआ था, अगर मान लो 50% लोग नहीं रेडी होते तो जीएसटी पास नहीं होता। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट very rigid and very flexible. It is mixture of both. Government was first introduced in which country? Okay, Great Britain, Belgium, France, Switzerland. अब देखिए जो हमारा ग्रेट ब्रिटेन है वहां पे सबसे पहले ऐसा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। अब देखिए ये काफी पहले से ही है, मतलब ये लोग काफी रूल करते थे काफी कंट्रीज में, तो इनका पहले से ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था कि उनका एक गवर्नमेंट होता है जिनका एक प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर उसमें रानी भी होती, किंग भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर कोई चीज उनकी जो भी पार्लियामेंट है वो अगर कोई लॉ पास करती है तो उसमें अभी तो रानी है तो रानी का साइन चाहिए होता है, रानी के बिना if Rani is not signing, that the bill is not going to become the act. The modern concept of parliamentary government emerged in the Kingdom of Great Britain. The notable historian Professor Space Month has also mentioned about UK being place of parliamentary government in his famous book इतिहास। देखिए इसके इतना मतलब नहीं है, इसको ये एक्सप्लेनेशन नॉनसेंस दिया हुआ है, बट कहने का मतलब ये है कि ग्रेट ब्रिटेन है वो that has been introduced the parliamentary form of government. Okay, next question. Which one of the following statement is correct regarding parliamentary form of government? फिर से वही चीज आ रहा है, it is responsible to judiciary देखिए BPCS में आया हुआ है, legislature is responsible to executive, legislature and executive are independent, the president is responsible to judiciary, none of the above. ठीक है, अब इसमें एक्चुअली देखिए कोई सा भी इसमें नहीं करेक्ट है, सारे गलत हैं, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, जैसे आप अपने कंट्री का बात करिए, उसमें क्या है, जो गवर्नमेंट होती है दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जैसे जो लोकसभा है तो वहां पे जो भी गवर्नमेंट मेजोरिटी में आती है वो जाके लोकसभा में बैठती है, ऑब्वियसली अपोजिशन भी होता है। तो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करते हैं, वहां पे लॉ भी आता है, ठीक है, बिल पेश होता है, बिल पास होता है, ठीक है, तो
अब वो कर क्या रहे हैं कि वो हमारे लिए लॉज भी बना रहे हैं और प्लस गवर्नमेंट भी चला रहे हैं। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, दे डू एक्चुअली बोथ, actually responsible to the legislature as well as they also run the government. So इस हिसाब से इसमें जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। So अब कुछ और भी उनके फीचर्स होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ के, ये सारे इसमें 9 फीचर्स दिए हुए हैं। विल रीड दैट the features of parliamentary form of government are executive is responsible to legislature. This is actually most important. Okay, majority party rule, collective responsibilities, a nominal and real executive, political homogeneity, double membership, leadership of prime minister, resolution of lower house, secrecy of procedure. देखिए, जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आता है तो आप बस इंडियन गवर्नमेंट के बारे में सोचिए। ओके, हमारा पार्लियामेंट कैसे वर्क करता है, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, उसके बारे में सोचिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो जो कुछ भी हमारे इंडिया में होता है, यू डोंट थिंक अबाउट यूके और कोई और कंट्री जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डोंट थिंक अबाउट दैट, जस्ट थिंक क्या हमारे कंट्री में हो रहा है, वो सारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे यहाँ होता है। ओके, सो द आंसर इज ई हियर। ओके, नन ऑफ, हमें कोई भी करेक्ट नहीं है इसमें, कोई भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, which one of the following points differentiate the Indian parliamentary system and British parliamentary system? Okay, collective responsibility, judicial review, bicameral legislature, real and nominal executive. इसका एक्चुअली जो हमारा होगा क्या पूछ रहा है, पॉइंट differentiate. Okay, so they're not asking about the what do you say, similarity. Okay, ये पूछ रहे हैं कि how they are differentiating. So it is actually judicial review. ठीक है, so ये तीनों चीजें तो होती ही हैं, but differentiate कैसे करोगे? It is actually judicial review. Okay, so in the absence of written constitution, the British Parliament is a sovereign body, while the Indian Parliament is subject to be a constitution of India. Its power are not absolute in the British sense in terms of the terms. The Supreme Court has, one second, just one second, yeah. The Supreme Court has the power of judicial review. It can declare any legislative action which is inconsistent with the basic structure of Constitution of India as null and void. अब देखिए ये तीनों चीजें होती है, जुडिशियल रिव्यू, डिफरेंशिएट वाली बात इस वजह से बोल रहा है कि हमारे जो इंडिया में क्या होता है कि अगर मान लो पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ पास किया जो कि जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अगर वायलेट कर रहा है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर देता है। बट ब्रिटिश में ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे कुछ जुडिशियल रिव्यू नाम की कोई चीज नहीं है। यूएस में है बट ब्रिटिश में नहीं है। ओके, सो द आंसर इज बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगा सकते हो, बट नहीं, कई लोग लगा सकते हैं, बट दैट इज नॉट द आंसर। Okay, so the answer is judicial review. Okay, I hope you got the point what I'm trying to say that. देखिए, I want to say one thing, जो लोग भी हिंदी वाले हैं, हिंदी में जो लोग पढ़ते हैं, वो उनके लिए it might be little bit difficult to, सॉरी हिंदी में उनको मैं बोल देता हूँ, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मेरे लेक्चर्स को सुनने समझने में, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 90 to 95% इंग्लिश में ही बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा जो है, आई मीन आई विल नॉट से कि मेरा हिंदी से टच खत्म हो गया है, बट यू कैन से दैट फ्रॉम लास्ट 15 to 20 years आई एम मोस्टली स्पीकिंग इन इंग्लिश विद रिस्पेक्ट टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बट समझने में, बट इफ यू नो लिटिल बिट इंग्लिश, आपको इफ यू आर लिसनिंग वेरी केयरफुली यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, तो जो भी हिंदी स्पीकिंग वाले हैं,
या फिर जो लोग हिंदी में प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा उन्हें डिफिकल्टी होगी, बट believe me, you'll get a very good content from this this channel. I'm not going to give any nonsense kind of thing. Whatever things I will give you, that everything will be helpful for your exam. Okay, so but just be with me. Even if you're not understanding much, you just watch the video or try to read that or try to understand the answers. That's enough. Question. या देखिए यहाँ पे assertion is का क्वेश्चन है. Assertion क्या दिया हुआ? The Constitution of India provides for a federal system. Reason it has created a very strong center. Okay. देखिए इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, the Constitution of India provides for the federal system. Yes. कितने क्वेश्चन हम लोग इससे पहले कर चुके हैं. It has created very strong center. देखिए दोनों चीजें करेक्ट है, बट स्ट्रॉन्ग सेंटर होने से फेडरल का कोई मतलब नहीं हो रहा. ठीक है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So the answer is B. Okay, so as per B.R. Ambedkar, the constitution can be both unitary as well as federal according to the requirement of time and circumstances. In the normal times, it is framed to work as a federal system, but in the time of war and emergency, it is so designed to make it work as though it was a unitary system. देखिए मतलब वैसे तो नॉर्मली हमारा जो यूनियन होता है वो सेपरेट वर्क करता है और सेंटर जो है स्टेट है अलग सेपरेट वर्क करता है, बट कुछ ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो एवरीथिंग विल बिकम यूनिटरी. ठीक है, सब लोग मिलके काम करेंगे एंड वहां पे फिर तो स्टेट और सेंटर वाली बात नहीं रह जाएगी. ओके, सो लेट्स से प्रेसिडेंट ने कुछ बोला तो पूरी स्टेट को चीज फॉलो करना होगा एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब कौन सा नहीं है इसकी बात कर रहा है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, entirely written constitution, single citizenship, independent judiciary. तो देखिए जो हमारा सिंगल सिटीजनशिप है ये चीज नहीं है. इट्स नॉट फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम. ओके, सो द आंसर इज सी. बाकी तीनों है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. इससे पहले हम लोगों ने कितना क्वेश्चन किया, सब में वही चीज दिया हुआ था. ओके, entirely written constitution, independent judiciary, ये सारी चीजें होती हैं. The Indian Constitution has both federal and unitary features. Its federal characteristics include a written constitution, a rigid constitution, distribution of powers between state and center, independence of judiciary, and bicameral legislature, etc. However, it also includes features like single citizenship, the appointment of governors by president, declaration of emergency, power of parliament for agreement implementation, which are unitary characteristics. ठीक है, तो जो हमारा सिंगल सिटीजनशिप है, हमारे इंडिया का जो सिटीजनशिप, इट्स अ सिंगल सिटीजनशिप, बट इसका मतलब इट इज नॉट द फीचर ऑफ फेडरल कैरेक्टर. ओके, इस थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not feature of Indian federalism. फिर वही चीज अलग तरीके से पूछा हुआ क्वेश्चन है. There is an independent judiciary. Power has been clearly divided between center and state. देखिए इसमें नॉट पूछ रहा है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. The federal unity have been given unequal representation in Rajya Sabha. It is the result of an agreement among the federal units. I think अगर आप थोड़ा सा भी इसके बारे में ध्यान है
अब इसका आराम से आंसर कर सकते हैं, इसका एक्चुअली में डी होगा। कहीं पे भी हमारे जो स्टेट्स हैं उसमें कुछ तो एग्रीमेंट की बात नहीं है, ठीक है, तो ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग है, ये बाकी सारी चीजें सही है। ओके, सो द आंसर इज डी। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो लोग भी देख रहे हैं अब कि जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स को मत याद करो, बट जो एक्सप्लेनेशंस हैं, ठीक, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो उसको सुनो, और अगर आप नहीं सुन रहे हो तो प्लीज रीड विद योर ओन, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में आपको क्वेश्चन से सिर्फ आंसर पता चलेगा कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर है, बट अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते तो आपको चार चीज और पता चलेगा। ओके, सो द पीक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीक्यू वाइज करने, पीवाईक्यूज करने का तरीका यही होता है कि यू डोंट सी द क्वेश्चन, ओके, यू सी द एक्सप्लेनेशंस, क्योंकि एक्सप्लेनेशंस में वो जो चारों ऑप्शंस होते हैं सबके बारे में बताता है। तो आप फिर जब एग्जाम में जाते हो तो वो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट उसमें जो कॉन्सेप्ट है, जो इवन जो दूसरे कॉन्सेप्ट दिए हुए वो आपको मिल सकता है, ठीक है। और बहुत सा चांस ऐसा होता है इसमें मिलता ही, अगर आप लास्ट 30 ईयर के क्वेश्चंस करते हो तो वो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो आई विल सजेस्ट यू प्लीज रीड द और लिसन द एक्सप्लेनेशंस, ठीक है, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन से ढेर सारे कॉन्सेप्ट आपके तैयार होंगे एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। Unequal representation of state in Rajya Sabha, dual governments are all features of Indian federalism. However, Indian federalism is not a result of any agreement among the federating units. While using the word union, Dr. Ambedkar mentioned in the Constituent Assembly that shows that जो भी हमारा इसमें ए में लिखा हुआ है, Indian Federation is not result of agreement by, बाकी ये वाला एक ही बात नहीं है, ठीक है, सॉरी, ये मतलब अंबेडकर ने ये दो चीजें बोली हैं, ठीक है। और जो बी उन्होंने बोला है, द कंपोनेंट यूनिट्स हैव नो फ्रीडम टू secede फ्रॉम इट। अब देखिए, जो जैसे यूएस की आप बात करो तो यूएस में क्या है, देखिए यूएस के बारे में अभी जब बात आई है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसको यूएसए क्यों बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्यों बोलते हैं। जब यूएस इंडिपेंडेंट नहीं था, जब जब ब्रिटिशर्स, आपको पता है कि ब्रिटिशर्स की कॉलोनी वो भी थी, अमेरिका भी थी, तो अब यूएस में जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वहां पे यूरोपियन थे, पीछे जो कैलिफोर्निया वाला पार्ट है वहां पे भी थे, बीच में फ्रेंच, मतलब जो यूरोप से ना फ्रेंच, ब्रिटिशर्स, सब अलग अलग जो यूरोपियन पावर उस टाइम पे थे वो सब अपनी अपनी कॉलोनी बना के रखे हुए थे। अब सबके कोई 4 स्टेट पे रूल कर रहा है, कोई 5 स्टेट पे रूल कर रहा है, ऐसे से करके था। बाद में वो लोग सारे लोग इकट्ठे हुए और ब्रिटिशर्स, आई विल नॉट से कि वो सारे लोग इकट्ठे हुए, जैसे कि तो मान लेते हैं कि जो आपका ईस्टर्न साइड है, जैसे न्यूयॉर्क हुआ, ओके, क्योंकि वो उस साइड में मोस्टली ब्रिटिशर्स थे, तो जो लोग ब्रिटिश से जाके वहां पे सेटल हो गए, उनको, अब उनको रूल कौन करता था, ब्रिटिश वाले ही करते थे। तो जो रूल करने के लिए वहां पे जाता था, जो एम्प्लॉयड होता था, जैसे कि हमारे यहाँ गवर्नर्स आते थे या फिर सिविल सर्वेंट आते थे बाहर से, उसी तरीके से यूएस में भी भेजा जाता था रूल करने के लिए। अब एक तो ब्रिटिशर्स ही वहां के काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और ब्रिटिशर्स ही उनको रूल कर रहे हैं। तो अब वहां पे क्या था ना कि जो वहां पे काम करते थे उनको वो एज अ बी ग्रेड सिटीजन कंसिडर करने लगे थे, क्योंकि अपने ही लोग हैं, बट उनको वो छोटा समझते थे। और जो आता था वहां पे ना कलेक्टर बन के, या फिर जो भी जिस भी जॉब के लिए उन्हें वहां पे भेजा जाता, या फिर मान लो गवर्नर बना के भेजा जाता, तो देवर ए ग्रेड सिटीजन। अब उसके वजह से वहां पर डिस्क्रिमिनेशन भी होता था, मारते थे, पीटते थे, टैक्स लगा देते थे दुनिया भर का,
अब जो लोग वहां के लोग थे उन लोगों को लगा कि यार ये तो हमारी ही कंट्री के लोग हैं और हम ही परेशान कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो वहां के जो एक्चुअल यूएस के लोग थे वो सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने बोला कि हम ब्रिटिशर्स को मार के भगाएंगे। तो उसके बाद उन यूएस के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई हुआ और वो ना काफी लंबी लड़ाई हुई थी। फिर वो लोग आई मीन जो फ्रेंच था वो यूएस को सपोर्ट किया था, ठीक है। तो अल्टीमेटली अमेरिका जो है ब्रिटिशर्स को हरा दिया, फिर ब्रिटिशर्स वाले वहां से चले गए और यूएस को इंडिपेंडेंट कर दिया कि ठीक है तुम जाओ, तुमको जैसे भी रहना है वैसे रहो। उसके बाद वो लोग क्या किए कि ठीक है अब उनको इंडिपेंडेंट मिल गया, अब वो लोग सारे के सारे मिलके अपना काम करना शुरू किए, अपनी कंट्री को डेवलप करना शुरू किए। तो जैसे जैसे वो लोग डेवलप होते गए अब वो लोग खुद से ही लड़ना शुरू कर दिए, साउथ ईस्ट वाला ज्यादा वहां पे भी फिर ये ब्लैक एंड वाइट जो ब्रिटिशर्स के लोग थे वो लोग गोरे थे, फिर जो लोग जैसे अफ्रीका वगैरह से जो लोग वहां गए थे वो लोग ब्लैक थे। अब इन लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हुआ कि जो साउथ अमेरिका के साइड के लोग हैं वो लोग नॉर्थ वाले से लड़ाई कर रहे हैं, नॉर्थ वाले ग्रुपिंग करके। मतलब इस तरीके से उनके बीच में if you read the history of US, so you'll read the 7 year war of America। मतलब वो खुद से ही लड़ रहा है। तो काफी 7 साल तक वो लड़े। 7 साल लड़ने के बाद फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि यार नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग लड़ाई करके जो मास्टर कंट्री थी यूके को भगाए यहाँ से, अब फिर अपने में लड़ रहे हैं। तो जब उनको इस चीज की अकल आई तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि ठीक है अब हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे। और जो यूएस का जो न्यूयॉर्क सिटी अभी उसको यॉर्क टाउन बोलते थे, वहां पे सारे के सारे इकट्ठे हुए और फिर ये बोले कि ठीक है अब हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे और हम लोग मिल के रहेंगे। तो अब वहां पे क्या हुआ ना कि सारे स्टेट वाले इकट्ठे हुए और एक उनकी जो मान लो 50 स्टेट है तो 50 स्टेट के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि ठीक है हम लोग मिलके 50 स्टेट मिलके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाएंगे, ठीक है। चाहे वो छोटा स्टेट हो या बड़ा स्टेट, जैसे टेक्सास बड़ा स्टेट है और जो न्यूयॉर्क है वो छोटा स्टेट है एज कंपेरिजन टू टेक्सास। लेकिन जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है वहां पे भी सेनेट और कांग्रेस होता है। तो सेनेट उनका अपर हाउस है। तो सेनेट में जैसे मान लो 50 स्टेट है तो हर स्टेट को 2-2 सीट दिया गया है। जैसे हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ एज पर द पॉपुलेशन दिया गया है। जो बड़े स्टेट हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे सीटें ज्यादा हैं, जैसे यूपी की 40 है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। बिहार ने यूपी का 80 है लोकसभा में, बिहार का 40 है। ओके, सो बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। बट यूएस में ऐसा नहीं था, वहां पे चाहे छोटा स्टेट हो चाहे बड़ा स्टेट हो सब मिलके बनाए हैं तो सबको इक्वल पावर दिया जाएगा। तो सबके 2-2 तो जैसे हमारे यहाँ एमपी बोलते हैं वैसे मान लो वहां पे भी एमपी होते हैं। तो 2-2 लोग मिलके सेनेट में बैठते हैं, टोटल 100 लोग हैं, ठीक है। मतलब उसमें वही था, ये सब ऐसा इसी वजह से किया गया कि मान लो किसी को बीच में लगा कि नहीं यार हम नहीं रहेंगे, हम अकेले रहेंगे, हम निकल जाते हैं। तो नहीं निकलने के लिए ही ऐसा किया गया कि उनके बीच में एग्रीमेंट है कि ठीक है तुम जुड़ रहे हो तो यू हैव टू राइट कि यू कैन नॉट कम आउट फ्रॉम दिस, ठीक है। और प्लस उनको अपना जैसे बोलते हैं आप इंडिपेंडेंटली अपनी स्टेट में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, अपने तरीके से राज करो, सब कुछ करो, अपना गवर्नर बनाओ, एवरीथिंग यू कैन डू, बट यू कैन नॉट लीव द यूएसए। ओके, बट जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था जो हमारे यहाँ स्टेट्स बनाए गए थे तो हम लोगों के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था कि वो तमिलनाडु का 2 सीट, यूपी का 2 सीट, बिहार का 2 सीट, ऐसा नहीं है। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे जो चीज बात हो रही है कि जो अंबेडकर ने बोला है कि इंडिया का जो है फेडरल सिस्टम जो है उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है और कोई भी स्टेट सेसेड नहीं कर सकता कि नहीं आज यूपी बोले कि नहीं मैं अब अलग से जाके
अपने तरीके से काम करूंगा, इट कैन नॉट बी डन। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अभी ऐसी बात आई थी तो मैंने आपको ऐसे यूएस के बारे में बता दिया था, बट ऐसा है वहां पे। ठीक है, अब बाद में और भी हम लोग जो वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे तो और भी चीजें देखेंगे क्या क्या चीजें हुआ था यूएस में। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक 10 मिनट ले लिया मैंने एक स्लाइड को बताने में, कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is unitary element in the Indian federal system? ओके, अब इसमें हमको या इसमें से चूज करना है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, unequal representation of in Rajya Sabha, judicial review, all India services, bicameral legislature। अब देखिए इसमें जो हमारा इसमें क्या बोल रहा है, यूनिटरी एलिमेंट इन इंडियन फेडरल सिस्टम। क्या चीज मतलब यूनिटरी है? अब जैसे कि देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अब आप इस तरीके से सोचो ना कि सेंटर कौन कौन चीजें करता है जो स्टेट नहीं कर सकता है। जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, अब अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, यस ये भी है। ठीक है, इसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज, ये भी ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, नो। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, नहीं। और हमारा जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर, नहीं। ठीक है, ये दिस इज नॉट द इट्स कंप्लीटली, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूट करता है, स्टेट में जाकर जॉब करेंगे, जैसे आईएएस आईपीएस और जो फॉरेस्ट सर्विसेज वाले होते हैं। गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंटर करता है, आई मीन प्रेसिडेंट करता है। राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्टेट से कुछ भी लेना देना नहीं है, स्टेट के लोग जाते हैं, बट उसको डिसाइड कौन करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करता है। So these features are actually unitary features. Okay, so the answer is B. So Article 1 of Indian Constitution declares that India to be a union of state. However, the Constitution has unitary element in the federal structure. For example, provision of powerful center, single citizenship, appointment of governor, ordinary services, unequal representation in Rajya Sabha are the unitary elements. Okay. Next, which of the following element about the federal system in India are correct? फिर से देखिए फेडरल सिस्टम ही चल रहा है, कोई बात नहीं। The Constitution introduced a federal system as basic structure of government. There is a strong admixture of a unitary bias. Both the union and state legislature are sovereign. Okay. The legislative, financial, and judicial powers have been divided between the union and its units. देखिए जो पहला है हमारा फेडरल स्टेट सिस्टम इन इंडिया आर करेक्ट पूछ रहा हमसे। देखिए जो पहला स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस अ फेडरल सिस्टम एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, यस ये सही है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एडमिक्सचर ऑफ यूनिटरी बायस, ये भी सही है। बोथ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर सोवरेन, नहीं। जो हमारा लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल जुडिशियल पावर हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द, नहीं ऐसा भी नहीं है। इट्स यूनिट्स, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सो द आंसर इज बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, विल रीड हियर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस अ फेडरल सिस्टम एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट as there is a distribution of power as given under 7th schedule of the Constitution and Article 245 to 255, which is related to the distribution of legislative powers. However, features like single citizenship, appointment of governors by president, power of parliament, two legislature or any matters of state list in a time of emergency, आर्टिकल 250, ठीक है वो आर्टिकल्स में बताते जा रहा है कि क्या क्या है। पावर ऑफ
parliament to legislate on a manner of a state in a national interest, which is article 249. Okay, so a strong unitary system. Okay, अब इसके बाद देखिए, though state legislature does not have power to interference to foreign and defense matters. ठीक है, ये completely हमारा ये ना यूनिटरी चीज है, जो फॉरेन से जो भी डील करना है वो सेंटर करता है, डिफेंस का मैटर सेंटर देखता है, स्टेट का कुछ भी लेना देना नहीं है उससे. दिस पावर कम्स अंडर यूनियन पार्लियामेंट, सो ओनली यूनियन इज सोवरेन नॉट स्टेट. ठीक है, मतलब इसकी वजह से वो यूनियन सोवरेन है बट हमारा स्टेट सोवरेन नहीं है. There is only hierarchy in judicial system, not the division of judicial power between the union and the state. अब देखिए, हमारा लोअर कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है. These are the hierarchy, बट ऐसा नहीं है कि कुछ डिवीजन ऑफ पावर नहीं, पावर ऐसा कुछ नहीं है. पावरफुल इज सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट का अलग पावर है, मतलब वो भी पावरफुल है बट सुप्रीम पावर इज द सुप्रीम court, has the Supreme Court. Center and state government get authority from Indian Constitution, President of India, Prime Minister of India, Indian Parliament. अब इसका आंसर आप आराम से कर सकते हो. तो चाहे सेंट्रल हो या स्टेट हो, गवर्नमेंट की अथॉरिटी कहाँ से आती है? कॉन्स्टिट्यूशन से आती है. ओके, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट रीड दैट, but is not required. Next, President of India is elected indirectly. Okay, parliamentary system in India has been combined with republicanism. देखिए, जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. आपको पता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, एंड सेकंड इज आल्सो करेक्ट. और ये जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका, इस वजह से हमारा ये आंसर हो जाएगा. ओके, सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन. देखिए, इनडायरेक्ट इस वजह से होता है ना कि हम लोगों ने वोट देके लोकसभा एंड राज्यसभा में अपने मेंबर्स को भेजा है, स्टेट लेजिस्लेचर में भेजा है, वो लोग प्रेसिडेंट चूज करते हैं. इस वजह से वो इनडायरेक्ट है, मतलब वो डायरेक्ट इलेक्शन में पार्ट नहीं करते हैं जो हमारा लोकसभा या स्टेट का जो इलेक्शन होता है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन. Parliamentary system in India has been combined with republicanism, as the head of state as is president, as in republic. There is no hereditary ruler, and all the representatives and other authorities are elected by direct or indirect election by the people of India. ठीक है. Next, India is a republic, which implies that the head of state is elected, the country is free, the country possesses a democratic system of government. Okay, the final authority in the country is rest with the parliament. देखिए, India is a republic, which implies the head of state is elected. Okay, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन आप देखो, जो assertion reason वाला क्वेश्चन था, वही चीज दूसरे तरीके से यहाँ पे पूछा हुआ है. सो आंसर इज ए. फिर से हमारा assertion reason है, political parties are lifeblood of democracy. Okay, normally people blame political parties for the bad governance. देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है, political parties are lifeblood of democracy. Yes, and normally people blame political parties are bad governance for bad governance. ये भी सही है. और देखिए, and this is also correct explanation. इसको थोड़ा सा और समझते हैं यहाँ पे. In democratic system, political parties play an important role
in formation of government. They bring people together to achieve control of the government, develop policies favorably and in the interest of the people. So it is said that political parties are lifeblood of democracy. It is also true that people usually blame political parties for bad governance. देखिए अब जो भी political parties होती हैं वो क्या करती हैं, मतलब गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, वो हम ही लोगों में से चुन के जाती हैं और फिर अगर उनका रूल खराब होता है फिर हम उनको बोलते हैं कि उन्होंने गवर्नेंस अच्छा नहीं किया, बैड गवर्नेंस था. So that's why the both the statement is correct and the reason is the correct explanation. फिर से assertion reason. अब देखिए assertion reason वाले क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते हैं. So if you know completely then only you answer, otherwise you just skip the question. The nature of Indian political system embodied the element of continuity and change. Okay, the Indian political system contains the elements of following political systems such as modern style, the traditional style and scientist style. देखिए इसमें फिर से दोनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है. द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम embodied the element of the continuity and changes. Yes, the Indian political system contains the element of following political systems such as modern style, traditional style and science style. जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है वो जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है उसके हिसाब से चेंज होता है. सो आंसर इज ए. करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. Like Indian political system from modern period to modern era, its specific element still exist in the tangible form. Although the continuous and changing Indian political system from various ages and periods contains elements of modern style, traditional style and scientist style. ठीक है, कुछ इसमें ऐसा बताने वाला है नहीं कि जस्ट रीड एंड नेक्स्ट. फिर से देखिए assertion reason. Federalism is not practical in India. Okay, India is not a federal state. अब रीजन तो गलत है. ओके, रीजन हमारा गलत है. ये तो सीधा सीधा रीजन गलत है तो आंसर सी हो जाएगा. India's federalism is not practical in India. ये तो सही है, ठीक है. अब ऐसा बट कंप्लीटली ऐसा नहीं बोल सकते, बट कुछ हद तक ठीक है. India is not completely federal system because some provision of completely, इसके कुछ कई provisions ऐसे हैं जो यूनिटरी हैं. क्योंकि जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ऑल इंडिया सर्विसेज, सिंगल सिटीजनशिप, ये सब चीजें हम लोगों ने देखा था. Constitution give it a unitary character. Some Indian constitution is federal in nature. So Indian constitution is federal in nature but unitary in spirit. इस वजह से ये चीज सही है. However, number of constitutional experts accept it as a federal state as there is a division of power between union and state. Casey Warrior described Indian constitution are quasi-federal. ये चीज आप याद रखिएगा, इनका नाम आप याद रखिएगा. इन्होंने बोला था quasi-federal. Indian constitution is quasi-federal. It's not a completely federal. So the answer is C. I think last question we'll do for this lecture. What is the nature of Indian constitution? Federal, unitary, parliamentary, federal in nature but unitary in spirit. None of these. So अभी हम लोगों ने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन दिया था उसमें जो आरसी वेयर ने बोला था कि our constitution is quasi-federal. So its meaning is federal in nature but unitary in spirit. So the answer is D.
Okay, so federal in nature and unitary in spirit. I think we have done a lot of questions related to federal structure of the Indian Constitution. So I think if you're watching once or twice this video, so whatever any type of question which is related to the federal system, if you are getting in the exam, I hope you will easily attempt that question and get the right answer. Okay, thank you.